Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a hearty warm welcome to all the viewers of Mana TV and Mana TV International. You're watching Community Special with Jyotsna. और आज की शाम स्पेशल है. आज की शाम आप लोगों के लिए है, एक entertaining evening है, एक melodious evening है. My community special episodes are different in nature. When it comes to weekend, I think of bringing some variety with some liveliness in your lives. बहुत सारे दिन हो गए, लॉकडाउन चल रहा है. We are easing out on the lockdown, but then still we need something better so that we are coming up better in this situation. And what's better than having a musical, melodious evening tonight? Evening where we will remember the Bollywood hits or Bollywood songs of 70s, 80s, and 90s. Today, we have an esteemed guest with us, a person who is a community leader and who is the founder of Dhun Musical Group and is also a secretary of a non-profit, a very good organization by the name IFMP. He is a person who loves to sing, and he is a person who loves to bring talent to notice. He has done various musical shows all over USA to bring meaning to talent. They identify right talent and they try to bring life and fullness to music. Today, we have amazing guest with us who's going to sing great songs, who will involve you together with him. And his name is Mr. Rajiv Singh. Rajiv ji, namaskar. Welcome to our special show today. And we are very happy to have you here. Thank you. Thank you, Jyotsna ji. I was thinking how to start. I have been looking forward to this date for last several days. I know for 2-3 weeks we have been planning, and there we go. We planned, and it is here. And thank you for hosting me. Thank you so much. I'm very excited. Yeah, likewise. Manna TV is, not new to me. Actually, in my journey of musical dhun, Manna TV has played a big role. And I tell you why. So when I started dhun, we had several level of concerts. And we started with the lower level, and then we took a leap jump. And when we went to a much bigger level of concerts where larger audience, larger setup, larger media coverage, all these things, Manna TV has been the media partner of that show. And again, to give you background, that was in 2018, October, and Dhun Musical Group, hosted by 2 non-profit organizations, IFMP, which I am part of, the secretary of that organization. Very nice. And IFM, it's a Monroe organization. And the leadership of both organizations came together and hosted Dhun. It was a sold-out event. And Manna TV was there to cover, came to know much about Manna TV there. And so some good feelings, some good luck. And I never looked back. Obviously, we have just started. It's a nascent baby, and I'm, with the blessing and support and love from you all, I'm hoping that this will, get bigger, and it will deliver more and more progressively towards its goal and objective, for which we have been trying for last, some time. But obviously that was probably a turning point. So thank you, Manna TV. And thank you, IFM. In fact, I have a long list to go through because, I have a passion. Passion को अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो उसको महबूबा भी बोल सकता हूँ. तो वो है, पैशन है. वो पैशन to fulfill that passion, I can't do alone. I need support. I need people to come and help me. And I have been fortunate, in that line, from that perspective, that I got
tremendous help from tremendous number of people, from tremendous number of organization. So again, the long list. I guess I will have few minutes sometime down the line. I will definitely give you the opportunity to reveal your long list. Being grateful for your teammates who are there. So we will discuss about them, and of course I would like to tell my viewers again about basically this Dhun musical group. It was founded by Rajiv Singh ji with the goal of providing quality and cost-effective entertainment by local talents. And not just that, it provides a platform for Indian American artists in music and other related fields. It has been a hardworking, talented team full of passion for music, basically. And they have conducted numerous sold-out musical concerts in several cities across USA, and many of them more than once. And the shows have been attended and applauded by several dignitaries of the United States of America, Indian Americans basically, and various non-profit and great organizations like Bajana, Federation of Indian Association, IFMP, IFM, MOCAAPI, Rana, Lions Club, Siddhivinayak Temple, and many other organizations basically. And this can only come as a recognition only when the quality of work is good and there is a real meaning to what they do. So Rajiv ji, I am very happy to have you today, at our Mana TV platform. And I appreciate that you recognize Mana TV. Mana TV definitely has become a household, TV channel for Americans, Indian Americans, because we try to reach your houses, your lives through the recent or the, instant connect, which is happening in your community, in your life. Of course, we have been updated about everything that goes around in the world, but then we really need to find an outlet where we are speaking about our own community, what happens here. And that's where we are taking that lead. So Rajiv ji, आज हमारी community के लिए मैंने जब आपसे बात की थी तो मैं बहुत अचंभित थी क्योंकि आपने मुझे बोला you would be singing songs of great singers like Rafi ji, Kishore Da, Sabir Kumar ji, Yesudas and Kumar Sanu, and this is quite a list. एक अकेली जान और इतनी सारी आवाजें. I am very curious and very excited to hear you today. Thank you. Thank you, Jyotsna ji. Or let me. In fact, I was so excited that I did not do a perfect, intro or perfect beginning of this, even not even close to the perfect. What I wanted to start with. I have been watching, you on Facebook, Mana TV, as a host, and you are just amazing, as a host. So this is an honor. To be guest of your show, and thank you. So again, आवाज़ जो है वो राजीव सिंह की आवाज़ है और मैं बहुत महान गायक हैं उनकी कोशिश करूँगा आज अपनी ही आवाज़ में कोशिश करूँगा कि वो महान हस्तियों ने जिस फील के साथ गाया था मैं उस फील के साथ गाऊँ नहीं उसके करीब जितना हो सके आऊँ तो वो मैं करूँगा आज. तो आज आप किस गाने से शुरुआत करने वाले हैं आज की हमारी इस मेलोडियस इवनिंग की रूबरू विद राजीव सिंह ऑल्सो नोन एज मेलोडी सिंह. तो मेरे को एक मेलोडी एक शुरुआत आपसे चाहिए एंड मैं बाकी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई म्यूजिक रिक्वेस्ट कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लेस करनी है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एट 631-867-1289 एंड बाकी राजीव जी द स्टेज इज ऑल योर्स. थैंक यू. मैं प्लीज़ मतलब कि आई वांट टू मेक दिस शो एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. आई सी नोट्स आर मैसेजेस आर फ्लैशिंग. अविनाश गुप्ता जी का भी जस्ट एक मैसेज आया है ऑन स्क्रीन में. सो ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बजाना एंड सिद्धिविनायक टेम्पल के चेयरमैन है. Close friend of mine, and he hosted our show. Unfortunately, we were to go there in April, जो कि this pandemic के चलते नहीं हो पाया. We are still planning to see if we can do it in next few months, but it's so nice. Thank you. So again, please make this interactive. I am a people person. I want to interact with you. In fact, it's very difficult for me to perform in a closed room. So to get best out of me,
आप उसको इंटरेक्टिव कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे और जैसे आपके मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ से, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल धुन ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं और अविनाश जी का मैसेज भी दिख रहा है और काफी सारे मेरे पर्सनल पेज पे भी हैं। अब आप बस शुरू कर दीजिए। That's तो what I will मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो मैं बोला, देखिए, मैं आई एम ए पीपल पर्सन एंड मेरे को मतलब लव, अफेक्शन, सपोर्ट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और मैं बहुत लोगों को मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ कुछ, और बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं एक गाना गा रहा हूँ जिनको मैं अब तक नहीं जान पाया हूँ, जो मुझे नहीं जान पाए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ। तो ये गाना उसका है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्यार का तोहफा आया है, दिल से आया है, मुस्कुराता हुआ है और एक ऐसी शाम को आया है जब सब बहुत अच्छे मूड में है, इंतजार में है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मेलोडी। थैंक यू ज्योत्सना जी। क्या बात है। तो बड़ा सोच के आपने ये वाला गाना पेश किया है हमारे दर्शकों के लिए, और अब इस प्यार से डेफिनेटली वो आपके दोस्त बन ही जाएंगे, जो आपको नहीं जानते थे वो भी जान जाएंगे। बस आई नीड दैट,
आपका आपका प्यार, सपोर्ट, यही तो है। और ये एक्चुअली तो हम लोग बात किए थे ज्योत्सना जी, आप 2-3 दिन से हम लोग जब इस शो के बारे में, इसका फ्रेमवर्क बात कर रहे थे, तो आपने पूछा था कि किस टाइप का पैकेज मैं सोच रहा हूँ। कल भी हम लोग बात किए थे। तो ऑब्वियसली अभी है कि हमारा मदरलैंड इंडिया, माता इंडिया, तो वहाँ पे बहुत सा अनफॉर्चुनेटली अभी जस्ट वी लॉस्ट 20 आई थिंक 20 जवानों की जवान शहीद हो गए वहाँ पे। हाँ, कोविड पेंडेमिक जो कि चल रहा है, इतना बात हम लोग करते हैं, कर रहे हैं, कर लिए हैं कि मैं उस वर्ड को आज अवॉइड करूँगा, लेकिन जो है सो है। तो ये जो लॉकडाउन का जो माहौल होता है, तो इसमें पॉजिटिविटी जितना हम लोग बाहर से एज ए सप्लीमेंट ला सके दे, वो मतलब उसको एट पार के लिए ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि मतलब ऊपर बहुत हैप्पी स्टेट के लिए, नॉर्मल स्टेट के लिए बहुत सा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आज के दिन में। तो मैं कोई पहाड़ उठाने नहीं आया हूँ, बस एक तिनका सा कोशिश इसमें करूँगा आज अपने गानों के द्वारा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आपके जो घंटे 1.5 घंटे का जो समय है, घंटा 1.5 घंटे का समय है, उसमें आपको अपने मेलोडी से कोशिश करूँ कि खुश करूँ, हैप्पी करूँ। ये बहुत अच्छा है। और आपने सही बोला कि जी हाँ, हम किसी भी खबर से अछूते नहीं हैं। खबरें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और उनसे ऊपर उठ करके हमको आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जिंदगी का नाम है जीना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तो हमें आगे बढ़ना है, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क रख के। ऑफ कोर्स इसी नजरिए से अगर जिएंगे तो जिंदगी अच्छी है। और बाकी गालिब का शेर है जिसको मैं मानती हूँ, और इसमें म्यूजिक जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रखता है, जिसमें कहते हैं कि गालिब ने बोला था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ज्योत्सना जी। मतलब खैर दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मतलब कि ये बोले ना कि ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आपके शो में एक गेस्ट बन के आया हूँ। दिस इज एन ऑनर। यू आर वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। खैर अब आप बताइए कि कौन सा डेडिकेशन आप करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपने बोला कि हमारे सैनिक भी शहीद हो गए, और वो जो है लाइन ऑफ LAC पे हुए इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो हुआ अभी। तो ज्योत्सना जी मैं एक गाना डेडिकेट करूँगा। मतलब एक्चुअली मैं ये हुआ क्या कि ये घटना घटी 3-4 दिन पहले ही, तो वो आस्पेक्ट इस शो में नहीं था। मतलब जो हम लोग जो आज कर रहे हैं उसमें मैं मेलोडी पे ही ध्यान दे रहा था। हालांकि हर संगीत, हर गीत मेलोडी ही होती है, लेकिन जो डिफरेंट भावना जो होती है, इमोशंस जो होता है, तो ये इमोशन पार्ट को मैंने नहीं सोचा था। तो इस 3-4 दिनों में मैंने एक गाना तैयार किया है, तो मैं उस पर गाऊँगा। लेकिन ये जो गाना है ये ऑब्वियसली हमारे मदरलैंड इंडिया के शहीदों के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो कोविड है ये भी एक वार है, पेंडेमिक एक वार है। इस वार में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, और फिर इसके बाद फायर फाइटर हो गए, पुलिस हो गए, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर, ये सब जितनी भी फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं ना, ये भी अपने हिसाब से एक फ्रंट लाइन में बॉर्डर पे जाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये, और उसमें बहुत लोगों ने मेरे नॉलेज में, मेरे जानकार में कुछ लोगों ने इस पेंडेमिक में लोगों को सेव करने के लिए फाइट करते करते अपनी जान दे दी। तो उनके लिए भी, हमारे इंडिया में, देश में, मदरलैंड में जो शहीद हुए उनके लिए भी, और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर है सबके लिए मैं एक गाना गा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, रफ़ी साहब ने गाया है, ये एपिक सॉन्ग है इस भावना के लिए। तो
मैं कोशिश पूरा करूँगा, देखिए कितना अच्छा होता है। मैं जरूर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खूह से ज़मीं पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राजीव जी। बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आपने हम सभी के मन में भर दी है कि जहां देशभक्ति, प्यार, केयर, कंसर्न सभी के लिए उभर के आ रहा है। म्यूजिक जो है बहुत अच्छी हीलिंग करता है और आज बहुत अच्छी हीलिंग थेरेपी आप हमें दे रहे हैं इस म्यूजिक के जरिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आज हमारे साथ अपना कीमती समय बिता रहे हैं और अपने टैलेंट को सारी दुनिया से मिलवा रहे हैं। और आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग, यू नो। एक दर्द भी था आवाज में, एक मैसेज भी था और एक बहुत अच्छा उम्दा किस्म से आपने एक मैसेज के साथ में एक केयर और कंसर्न अपना दे दिया कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए। थैंक यू दोस्ना जी। कोशिश किया, मैं क्या बताऊं। मैं जब पिक्चर्स देखता हूं जवान मरे, वो तो है ही बहुत दुख की बात है। और बहुत, तो आपने सही कहा, म्यूज़िक जो है एक्चुअली मैं मतलब अपने आप को इसकी उपाधि नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ, थिंकर जो बोलते हैं वो एक तरह का, लोग बोलते हैं कि एक स्पेशलिटी होती है। तो मैं प्रोफेशनली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ। तो देखिए, म्यूज़िक ऐसा चीज़ है कि हर जगह है और प्रॉब्ली द मोस्ट पावरफुल। हम लोग भगवान जो है मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह जाते हैं। तो देखिए कि जो प्रेयर करते हैं वो भी एक संगीत है। Absolutely. और है ना, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट को हम लोग डिज़ायर करते हैं, उसका भी माध्यम संगीत है। तो संगीत मेरे ख्याल से द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ ह्यूमन फीलिंग, तो हमको लगता है। थैंक यू, परफेक्ट है। संगीत तो बहुत सारी चीजों में है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में है, चाहे झरने का पानी हो, चिड़िया की आवाज हो, हवा हो, समुद्र की लहरें हो। तो ये संगीत के साथ जुड़ना लेकिन एक तपस्या है, एक पूजा है। और उस पूजा में कुछ कम लोग जो होते हैं वो सफल होते हैं, और जो होते हैं वो आप जैसे होते हैं। थैंक यू। अभी शुरुआत ही है ज्योत्सना जी, बहुत, और ये पैशन है। तो पैशन जो होता है ना, वो उसके लिए बहुत सा चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और हम लोग सबको अपना एक लिविंग भी है, तो उसको भी मेंटेन करते हुए, बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए, अगर आप पैशन को परस्यू करते हैं तो ऑब्वियसली 24 घंटा ही दिन में है। तो यू हैव टू, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि मुझे वो एक्स फैक्टर जो बोलते हैं, डेल्टा फैक्टर से नहीं काम करता है। राजीव जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। एक कॉलर हमें कॉल कर रहे थे और दोबारा कॉल आई है। हेलो हेलो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजीव जी का। मेरा नाम है संजय गुप्ता। आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, इफ कैन सिंग द सॉन्ग ऑफ माय चॉइस। श्योर श्योर, संजय जी बताइए। Yeah, the program, let me tell you, madam, Joseph madam, the program is very energetic. We're just loving it simply. We're watching it live. Thank you. I cannot thank enough, to make this evening such a beautiful evening for us. अगर उनको आप रिक्वेस्ट करें काइंडली इफ यू कैन सिंग, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल संजय जी, हम आपका ये मैसेज ले रहे हैं। वो शाम भी कुछ अजीब थी और ये शाम भी कुछ अजीब है। वाकई में बहुत बढ़िया चॉइस है। और आप देखिए हमें, राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी मैसेज देना चाहेंगे, संजय जी को दे दीजिएगा। और कीप वाचिंग अस। संजय जी, वो मैं क्या बताऊं, मतलब ये हमारे कुछ मित्र हैं जो कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी रहती। और वो है तो मेरी संजय गुप्ता उन कुछ मित्रों में एक है। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही कैपेबल पर्सन एंड हम्बल। ये तीनों का कंपोजिशन जो है ना बहुत रेयर होता है, और संजय जी के पास है वो। आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज़ माई फ्रेंड बियॉन्ड दैट। थैंक यू संजय। तो राजीव जी, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं एक्चुअली देखता हूँ। ज्योत्सना जी थोड़ी बताइएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है, ट्रैक वगैरह ये कैसा है, क्योंकि ना आवाज़ अच्छी आ रही है। जब आप गाते हैं तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। आपका जो इको माइक का है वो अच्छा है, एप्ट है। और बस आप जब आप देखते हैं तो आप शायद नजरें थोड़ी और ऊपर उठा करके कैमरे की तरफ देखेंगे तो आप सबसे हमसे नजरें मिला पाएंगे।
आप आई नो ये डिजिटल जमाना है और जब हम स्क्रीन के साथ प्ले अराउंड करते हैं तो समझ में नहीं आता कि यार देखें कहाँ पर। तो अगर आप स्क्रीन से ऊपर उठ के देखेंगे तो आप मुझसे नजरें तब मिला पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्चुअली मेरे के साथ एक डिफिकल्टीज हो गया, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ समहाउ, मेरे स्क्रीन फ्रीज हो गया है और उसमें तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ, मुझे 30 सेकंड 10-20 सेकंड टाइम दीजिएगा, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो, तो मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। आप अपना टाइम लीजिए, मैं अपने दर्शकों से तब तक बात कर लेती हूँ डेफिनेटली। अगर इन केस अगर ज्योत्सना जी इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगा, है ना। मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड टू दिस। आप कुछ नहीं होगा, रेस्ट अश्योर्ड। टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं। ऑल माय व्यूअर्स, यू नो इट वेरी वेल, वी आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ concerts and everything from our home studios, and it takes a lot of efforts to set up all the things while being at home. मैं भी अपने होम स्टूडियो से आपसे बात कर रही हूँ। राजीव जी ने भी बहुत अच्छा सेटअप पूरा अरेंजमेंट किया है। all his mics and everything are absolutely professionally equipped, and काफी एफर्ट लगता है जब हम कोई कॉन्सर्ट होम से करते हैं, घर से करते हैं, घर के सेटअप में करते हैं। एंड लाइक हमें आवाज अच्छी आ रही है और आप डेफिनेटली मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि ये डिजिटल कॉन्सर्ट इस समय जो चल रही है उसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आवाज में अगर कुछ आगे पीछे है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है जहां हम टोटल मेलोडियस एंटरटेनमेंट एक करेंगे। एक शाम जो है बहुत यादगार शाम बनाने वाले हैं हम ये आप लोगों के लिए। तो यह राजीव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं जहां पर, वहां आप भी जरा अपने कुछ चुनिंदा गाने बताइएगा जो राजीव जी से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एट 631-867-1289. I repeat, this is 631-867-1289. You can call us straight and request, or you can equally send your message to us and Rajiv ji about today's evening and whatever you want to listen. राजीव जी जो है पूरा इस समय एक पारखी की तरह, एक परफेक्शनिस्ट की तरह अपना स्क्रीन सेटअप एंड एवरीथिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल सेट नाउ। तो मैं ऑल सेट, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ना वो बॉदर कर रहा था मुझे, ठीक है। तो मैं सिर्फ राजीव जी सिर्फ सामने देखिए जरा, तभी हमें आनंद आएगा और हमारे ऑडियंस को आनंद आएगा। आज ये बिल्कुल अलग शाम है, जान आपने डाल दी है, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। काफी लोगों ने तो बताया। अब मेरे को एक और कॉलर का कॉल आ रहा है, मैं इनका कॉल ले रही हूँ राजीव जी, सिर्फ ताकि आप ये गाना इनसे आप सिक्योर कर लेंगे। हेलो, प्लीज शेयर योर नेम। हेलो ज्योत्सना जी, आई जस्ट कॉल्ड अप a while back. I think I got disconnected, so I made a request to sing the song. ओह संजय जी, ऐसा है कि वो गाने वाले हैं क्या? आप इक्वली हमें देख रहे हैं टीवी पे, तो मैं क्या करती हूँ कभी कभी फोन बंद कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीन पे हमें सुन पाएं। ठीक है। ओ शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक
हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। क्या बात है। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स जो मिल रहे हैं ना राजीव जी, मैं ऑफ कोर्स मेरी नजरें झुकी हुई हैं क्योंकि सोशल मीडिया भी साथ ही चलता है आजकल, टीवी के साथ में बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। और सबसे बढ़िया कॉलेज का फ्रेंड अभी बोलिए ना, सॉरी आप बोलिए। जी जी बोलिए। मैं आपसे सुनूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी एक फेसबुक में हमारा हाई स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो जिगरी फ्रेंड है जिगरी, वो मुझे कॉल किया था, मैं नहीं ले पाया, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज वाचिंग टू। आप उन्हें बोलिए, आप हमें कॉल करिए 6318671289। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा से सेफ प्ले कर रहा हूँ। They can call us to request a number, like they want to listen something, they can call us 6318671289। आप हमें कॉल करिए, मैसेज देना चाहते हैं राजीव जी को, डेफिनेटली ही विल टेक द मैसेज। एंड और कोई एडमायरेशन करना कुछ बोल रहे थे, बोलिए, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। तो अच्छी चीज ये बता रही थी कि सबसे बढ़िया जो एप्रिसिएशन हमें हमारी टीम से मिलता है वो हमारी टीम से मिलता है, जो हमारी टीम एडिटोरियल टीम और हमारी कैमरा टीम और सारी टीम जो इंडिया में बैठी है ना, टेक्निकल टीम, मेरे टेक्निकल टीम के पर्सन ने मुझे बाकायदा बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि द साउंड एंड द वॉइस क्वालिटी इज कमिंग जस्ट अमेजिंग। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि वो आनी ही थी अच्छी, क्योंकि आप गा रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि जो मैं बोला था ना कि ये पैशन के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा, तो वो मैंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए। राजीव जी, एक कॉल आ रहा है, मैं आपका लूंगी ये कॉल को, आपके ही फैंस कॉल कर रहे हैं। हेलो ज्योत्सना जी से बात कर रही हूँ? जी मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ, बताइए। मैं राजीव भैया को सुन रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके सिंगिंग का, और
मतलब हम लोग प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, अभी वॉच पार्टी को भी है, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, एक प्यार का नगमा, अगर ये सॉन्ग नहीं हुआ और थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना नाम जरूर बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल। राहुल जी, राहुल यादव जी की रिक्वेस्ट है। राजीव जी बोल रहे हैं एक प्यार का नगमा है, ये गाना आप जरूर सुनाए उन्हें। उन्होंने भी बीच में ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। ठीक है, तो मैं ट्रैक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दो लाइन गुनगुना देता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। राहुल मेरा इज़ वेरी क्लोज, इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और इज़ अ ग्रेट पर्सन। एंड ये बिहार के लिए एक संस्था है, जिसको ये नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिसको कि इनके साथ कुछ लोग मिलके काफ़ी पैशनेट होके बड़ा मेहनत से सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आप संस्था का नाम बताना चाहें तो बताइएगा, हमारे लोग और भी जुड़ेंगे उस संस्था से फिर। हाँ राहुल, तुम अगर हो तो बता दो। नहीं, इनकी आवाज थोड़ी कम आएगी, आप बता दीजिए। तो अच्छा, बिल्डिंग बिहार। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि बिल्डिंग बिहार करके एक नॉन प्रॉफिट है। या बहुत बढ़िया। एक्चुअली हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बिहारी हूँ, झारखंड बिहार दोनों। पहले इजी होता था कि एक ही स्टेट था, तो मेरी जो पैतृक निवास है वो बिहार में है अभी। मेरी ससुराल भी बिहार में है, और मैं पला बढ़ा हूँ झारखंड में। तो झारखंड और बिहार मतलब उसकी मिट्टी पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी की ये बात तो देखिए जाहिर हो ही गई है, क्योंकि जो बिहार की भाषा है, जो बिहार की भाषा में मिठास है, वो खनक और मिठास तो आप लेके चल रहे हैं। सो आई डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप एक प्राउड बिहारी हैं। बिहार की मिट्टी के जो अच्छे है सन है, जिन्होंने अच्छा नाम रोशन किया है अमेरिका में अपने प्रदेश का। तो राहुल, तुम्हारे लिए दो लाइन गाता हूँ ना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की निशान। मैं थोड़ा सा, एक प्यार का नगमा है, मौजों का। मैं एक्चुअली डायरेक्ट इसका मैं अंतरा गाता हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। क्या बात है। ठीक है, मैं इसकी लिरिक देख लेता हूँ। मैं एक्चुअली समझ गई। देखिए, सारे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो धुन जो है एक्चुअली दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मुझे लिरिक याद आती है। आज थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है। मैं फिर से बैकग्राउंड में प्रोसेस शुरू हो गया है, तो करिएगा, रीप्रोसेसिंग कर लीजिएगा, और अपने लिरिक्स का अगर ट्रैक मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और ट्रैक मैं कोशिश करूँगा। हाँ, तो ज्योत्सना जी, ये टाइम तो काफ़ी हो गया है ना, मतलब कि तो नहीं, हमारे पास अभी 40 मिनट है। राजीव जी, एक और कॉलर मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं ये कॉल भी ले लेती हूँ पहले। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम संतोष झा है। सर, दोबारा अपना नाम बताएंगे, और आपके जो पीछे टीवी चल रहा है उसकी आवाज थोड़ी कम कर लेंगे प्लीज, क्योंकि मुझे मेरी आवाज एको हो रही है। मेरा नाम संतोष झा है। संतोष जी, नमस्कार, बताइए। जी, संतोष बहुत अच्छा डांसर भी है। राजीव जी, मेरे महबूब कयामत होगी कि गाना सुनना चाहते हैं संतोष झा जी, और आपके लिए कॉल तो मैं की जा रही है। तो मैं उसकी कोशिश करूंगा। मुझे समय दीजिए अभी थोड़ा से ना, ये समय लीजिए। थैंक यू संतोष जी, आपके गाने को वो लेंगे और आप जरूर गाएंगे। आप बिल्कुल, आप राजीव जी, ऐसा नहीं है कि जो कॉल अभी आ रही है इंस्टेंटली आप वो गाना गाएंगे। आप हमारे जो ट्रैक हैं थोड़े बहुत आप प्लीज उन्हें गाइए, और पीछे से हम इनको लेंगे।
समय की बंदिश ऐसी नहीं है, अभी हमारे पास करीबन 35 मिनट और हैं, और 35 मिनट में तो बहुत सारे गाने और म्यूजिक को हम ठीक जी है। लेंगे आपके साथ। तो मुझे ना 2-3 मिनट टाइम चाहिए। मैं बहुत लोगों को वो करता हूँ, मैं तो बहुत बार दिल से बोल चुका हूँ थैंक यू, लेकिन मैं सोच रहा था कि उन लोगों को मैं फिर से थैंक यू बोल दूँ बोल कि दीजिए। मैं जो भी थोड़ा, तो मैं इस गाने की बात करता हूँ। ये गाना जो है ना, ये बहुत ही प्यारा गाना है, ये शब्बीर कुमार जी का है। मैं बोला था 80s का भी कुछ गाना मैं गाऊंगा। जी 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 तो जी। मैं आई डोंट थिंक आई वाज इवन टीनेजर एट दैट टाइम, लेकिन जब ये मूवी आई थी तो बहुत ही अच्छा गाना है। ये शब्बीर कुमार का पहली मूवी थी ये बेताब, तो उसका गाना है। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो प्रेमी हूँ, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, रूप का आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, प्यार का बादल हूँ मैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाई नहीं। हो तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाई नहीं। इतने दिन तुमको ही मेरी, इतने दिन तुमको ही मेरी याद तक आई नहीं। आ गया यादों का मौसम आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। उम्र ही ऐसी है कुछ ये, तुम किसी से पूछ लो। हाय उम्र ही ऐसी है कुछ ये, तुम किसी से पूछ लो। एक साथी की जरूरत, एक साथी की जरूरत पड़ती है हर एक को। दिल तुम्हारा इसीलिए घबरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। खोल कर इन बंद आँखों के झरोखों की तरह
खोल कर इन बंद आँखों को झरोखों की तरह, चोर आवारा हवा के, चोर आवारा हवा के मस्त झोंकों की तरह, रेशमी जुल्फों को मैं बिखरा गया। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। क्या बात है, क्या बात है राजीव जी, मतलब मजा आ रहा है। पूरा वो आवाज आप हम लोगों ने दी थी और आप आ गए, तो ये सबसे अच्छी हमारी अच्छी खुशकिस्मती है, हम ये कहेंगे। आज मना टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे आप ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये हम मना टीवी की तरफ से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। ज्योत्सना जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा शक था कि कैसा करूंगा, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्स देखिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। आपको आज बोलने नहीं दूंगी, मैं बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो इतने सारे कॉल्स अभी एक आप ये कॉल लीजिए, चलिए आप सुनिए, तो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएंगे। नमस्ते, प्लीज अपना नाम बताइए और कौन बोल रहे हैं और क्या आपकी सॉन्ग की फरमाइश है। संजय सिंह फ्रॉम अलाबामा। राजीव जी। ओह अरे मैं क्या बताऊँ, आपके चाहने वाले तो पूरे अमेरिका में, मतलब दूर दूर से आपको मैसेज आ रहे हैं इस समय। तो संजय जी बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू संजय जी। मैं आपको एक और मैसेज आपके साथी का भी देना चाहूंगी और राजीव जी को भी देना चाहूंगी। अभी कॉल आया था गजेंद्र सिंह सोलंकी जी का, जो कि राणा फैमिली के आई थिंक प्रेसिडेंट है, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी प्लेस की है। उन्होंने कहा सिलसिला का कोई भी सॉन्ग, एक सिलसिला का आपने बहुत बढ़िया कोई गाना गाया था पहले, तो उस गाने को आप गाइएगा। ठीक है, तो सिलसिला का मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो है ना डुएट है, तो हम लोग जल्द ही कुछ कॉन्सर्ट करने वाले हैं अपने धुन टीम का, तो उसमें मैं गाऊंगा। लेकिन मैं डायलॉग बता देता हूँ। जो अमिताभ बच्चन जी जो डायलॉग है उनका, मैं मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, तो मैं गजेंद्र जी के लिए। तो इससे पहले मैं संजय जी के बारे में बता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई के समान हैं, बड़े भाई हैं मेरे, बहुत ही नेक इंसान। ही इज़ अ डॉक्टर इन अल्बामा, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, वेरी केपेबल एंड एस्टैब्लिश्ड पर्सन देयर। राणा के राणा राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो, और गजेंद्र जी अभी करंट प्रेसिडेंट है। गजेंद्र जी मोनरो में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हम लोग के पड़ोसी हैं। और संजय जी अल्बामा में से बताए, और हम लोग बाल्टीमोर में हमारी धुन टीम गए थे, वहाँ पे कॉन्सर्ट किए थे। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन में करीब काफ़ी लोग आए थे, ऑलमोस्ट क्लोज टचिंग 1000 लोग आए थे उसमें, और 13 कंट्रीज आए थे। काफ़ी बहुत मज़ा आया था, काफ़ी प्यार तारीफ मिली, बहुत अच्छा लगा। संजय जी तो हमारे भाई हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू संजय जी। गजेंद्र जी आप भी मेरे बड़े हैं। आपको ये प्यार मिलता रहेगा। इस प्यार की झड़ी में एक और कोई आपको प्यार करने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, तो मैं कॉल ले लेती हूँ। नमस्ते, प्लीज अपना नाम बताइए। जेम्स सिंह जी फ्रॉम टेक्सास। नमस्ते सर, बताइए, अपना मैसेज दीजिए। सर अपना मैसेज दीजिए प्लीज। Yeah, this is James Singh from Texas. I just want to say that we are enjoying a lot. बहुत बहुत बधाई हो राजीव सिंह जी। केएन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे मजा आ गया भाई, आपने कॉल की, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया भाई मेरे। आपके लिए बहुत सारे आपके भाई और चाहने वाले आ गए आपकी आवाज पे। राजीव जी ये भी राणा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला अभी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। प्लीज कीप वाचिंग अस। मेरे को फोन लाइन रखनी पड़ेगी, कॉल्स बाकायदा आ रही हैं। और अब बस आप गाना गाइए राजीव जी, और थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड कॉल, अप्रिशिएट इट। राजीव जी चलिए, तो गजेंद्र भाई के लिए अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कॉलर्स को बोलूंगी थम जाइए और सुनने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट जो आई है सिलसिला का सॉन्ग है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और फिर 14वीं का चांद है। अब आप जहां से पहले गुनगुनाने वाले थे उस गाने को गुनगुना दीजिए। चलिए, तो ये एक्चुअली जितने भी सॉन्ग्स है ना, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, वी माइट
डू अनदर शो, फॉलो अप शो, तो उसमें ना कुछ हम लोग सॉन्ग्स को लेके तैयार करके आएंगे। लेकिन मैं इतना प्यार मिला है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ। तो गजेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं। अमिता, ये सिलसिला कर। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू। इसका एक 3 डायलॉग, 3 पार्ट है, मैं दूसरा स्किप कर ऐसा करता हूँ। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है कि दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों यूं ही सुलगते रहें, आ लोगों को बता दे कि हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। दिल में अब यही बात इधर भी है उधर भी। थैंक क्या यू। बात है, थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत बढ़िया। अब आपके गानों की झड़ी लगाने के लिए रिक्वेस्ट आ गई। उन्होंने बोला कि अब हम बातें कम करेंगे और गाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। अविनाश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि मोर सॉन्ग्स, ज्योत्सना कम बात करो। तो ये अभी ना एक थोड़ा खड़ा एक अभी 3 गाना मैं लगातार गाता हूँ, तो ये बैठ के गाता हूँ। ये यशोदास का बहुत ही प्यारा गाना है जी। और ये गाना जो है हम जमशेदपुर में जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे हमारे काफ़ी बंगाली और उड़िया मित्र हुआ करते थे। तो उस वक्त हम स्कूल में थे, तो एक नैया मूवी आई थी जिसका कि हीरो जो था वो हिंदी मूवी है, लेकिन उड़िया था। तो वो काफ़ी गाना गाते थे हमारे उड़िया मित्र सब। तो वो जो बचपन की जो मीठी मीठी यादें हैं, तो वो गाना इस गाने वो यादें इस गाने के साथ हैं। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ गोरिया रे, गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। नैया तो हमारा घर आंगना, इसी से है पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये तू आए करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी
टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। सबको किनारे पहुँचाएगा, माझी तो किनारा कभी पाएगा। सबको किनारे पहुँचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। गोरिया रे गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। वो तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। अपना तो नित यही काम है, कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गाँव में। ओ गोरिया रे तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। थैंक यू। आपके आने से सज गई हमारे मना टीवी के प्लेटफॉर्म की शान। अरे मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत खूब, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आपको राजीव जी। इस समय मना टीवी का जो फेसबुक पेज है उस पे काफी सारे लोगों ने बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स दिए आपके गाने से और आपके आने से सज गई हमारी शाम। थैंक्स राजीव भैया। राहुल यादव बोल रहे हैं और मतलब कितने मैसेज पढ़ूं, बस आप गाते रहिए। तो ये हो गया है कि आपका नेक्स्ट चॉइस। तो मैं एक्चुअली ये गाना जो है ना, कल फादर्स डे है, तो मैं इसके बाद दो गाना जो है फादर्स डे के लिए गा रहा हूँ। मेरे पिताजी के तो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, तो वो शरीर से नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन आत्मा से, याद से तो हमारे 24 घंटे यहाँ पे ना हमेशा रहते हैं वो। तो और हर दिन हर लम्हे मेरे लिए फादर्स डे, सेकंड, मिनट सब है। तो ये गाना जो है ये झील के उस पार मूवी, मैं बहुत जब छोटा था तो पिताजी बहुत कम हमको मूवी के लिए ले जाते थे। तो गिने चुने मूवी में ये मूवी मैं पिताजी के साथ देखा था और ये गाना मुझे काफ़ी पसंद आया। उस वक्त छोटा था फिर भी काफ़ी पसंद आया। बचपन से म्यूज़िक जो है वो जहन में एकदम समा गई है। तो मैं अभी गा रहा हूँ। अच्छा, और ये एक और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत बोलना चाहता था अपनी टीम के बारे में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिएगा आप, बताइए। ऐसा नहीं है। लेकिन
सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं एक बार के लिए, एक कॉलर हैं जो आपको शायद एक और चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, मैं मैसेज लेकर के आपकी बात रिज्यूम करूंगी। प्लीज अपना नाम बताइए और मैसेज दीजिए। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। विजेंद्र पवार फ्रॉम डैलस। विजेंद्र जी अरे बताइए। वाह, बस हम अपने भाईजान, हमारे दिल के प्यारे राजीव जी मेलोडी सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आप भी बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं। आप दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन विजेंद्र जी, अप्रिशिएट इट। थैंक यू। विजेंद्र, थैंक यू। विजेंद्र जी न्यूजर्सी में रहते थे, अभी कुछ सालों पहले टेक्सास में मूव कर गए, डैलस में। इनके बारे में जवाब नहीं मेरे पास। आपको लंबी लिस्ट, लंबी फहरिस्त है आपकी, मुझे जानती हूँ जिन्हें आपको थैंक्स करना है। तो पहले आपसे हम आपका जो पिताजी के साथ में जो मूवी देख के आए थे वो गाना सुनेंगे, और उसके बाद आपकी इस फहरिस्त को भी सुनेंगे। हम आपको टाइम देंगे थोड़ा सा, मैं अपनी टीम से पता कर लेती हूँ कि मुझे थोड़ी और मोहलत दें, क्योंकि ये शाम जो है बहुत ही अच्छी वाइब्स के साथ आगे बढ़ रही है। अगर मुझे मेरी टीम बोलती है कि मुझे आधा घंटा और मिलेगा तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। तो मैं चेक कर लेती हूँ और आप तब तक अपना ये गाना हमें जरूर सुनाएं। चलिए, बहुत ही प्यारा गाना है, मैं अपने लिए गा रहा हूँ गाना। Very nice. क्या नजारे, क्या सितारे, क्या नजारे, क्या सितारे, सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे, बादल अंबर पे यूं ही आता जाता रहेगा, तेरी रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। बादल अंबर की तरह आता जाता रहेगा, तेरे रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। कदमों की धूल चूमेगी ये फूल, तू जब सब देखेगी। हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे, मन में तू ऐसे समाई जैसे नदियाँ में नीर, मेरे नैनों के दर्पण में लगी
है यूं तेरी तस्वीर, मन में तू ऐसे समाई जैसे नदियाँ में नीर, मेरे नैनों के दर्पण में लगी है यूं तेरी तस्वीर, अपना ये रूप ये धाव धूप तू जब सब देखेगी, क्या नजारे क्या सितारे, सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी, क्या नजारे क्या सितारे। थैंक यू। बहुत बहुत ही बढ़िया फीलिंग्स जो है आपने सभी के मन में इस समय जगाई हैं अपने पिताजी के लिए। इतनी सारी दुआएं थी इस गाने में, इतनी सारी होप थी, उम्मीद थी। मुझे अपने पिताजी की भी याद आई। आप गा रहे थे और डॉटर्स आर देयर फादर्स प्रिंसेसेस, एंड कहीं ना कहीं फादर्स डे का जो मौका है कल आ रहा है, हम अपने पिता को याद करते हैं। पिता की जो छवि होती है ना, वो एक ऐसी छवि होती है जो एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष होता है ना, जैसे उतनी महान छाया देने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं। राजीव जी, मुझे एक कॉल आ रही है, खैर मैं ये लूंगी, कॉल बीच में भी बहुत आ रहे थे, तो हेलो, प्लीज अपना नाम बताइए और मैसेज दीजिए। मेरा नाम मनीष है, मैं जर्सी सिटी से हूँ। नमस्ते मनीष जी, बताइए। मैं लाइव हूँ या फिर ये आप नहीं, बिल्कुल लाइव हैं और आपको राजीव जी सुन रहे हैं ऑन कैमरा इस समय, तो आप अपना मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, सबसे पहले ज्योत्सना जी, सबसे पहले आप कमाल के होस्ट हो। ओह माय गॉड, थैंक यू। राजीव जी, आपके सॉन्ग वाकई मेलोडी से भरपूर हैं और मेरे एक रिक्वेस्ट है सॉन्ग की, वो जब याद आए। अच्छा, वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो टाइम है ज्योत्सना जी? तो मनीष जी, मैं आपको खुशखबरी दे देती हूँ, राजीव जी को भी। हमारा शो आधा घंटा और आगे बढ़ गया है। मेरी टीम से मैंने बात की और उन्होंने बोला कि इतना बढ़िया शो चल रहा है कि ज्योत्सना, हम राजीव जी के इस टैलेंट को इस बीच में नहीं रोक सकते। हम सभी ईगर हैं और सुनने के लिए इन्हें। तो वो जब याद आए, ये मेरी रिक्वेस्ट है राजीव जी से। जी, थैंक यू मनीष जी, आपको सुनाएंगे गाना में। तो ये गाना गाऊंगा मैं, और फिर तो एक थोड़ा सा ना संजय जी अलबामा, एक्चुअली मैं 2-3 मिनट टाइम लेता हूँ, उसके बाद मैं संजय जी के लिए, वो मेरा एक जैकेट है जो कि ट्रेडमार्क बन गया मेरे लिए। हाँ, चाहे डॉक्टर अविनाश जी हो गए, चाहे संजय जी डॉक्टर अलबामा वाले हो गए, हमारे एक भाई समान भाई ही है, सूर्या जी हैं, अमरीश, बहुत लोग हैं। मैं लूँगा टाइम, 2 मिनट लूँगा, लेकिन उन लोग सब को वो जैकेट काफ़ी पसंद आता है, तो मैं पहन के आता हूँ, उसका तो गाना गाता हूँ। हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ा दी है जब आप बोल रहे हैं कि जैकेट है या कोट है जो आप पहनने जा रहे हैं। तो वो उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। मेरा यूट्यूब में जाइए, धुन म्यूजिकल ग्रुप का यूट्यूब में जाइएगा, चाहे फेसबुक पेज में जाइएगा, तो वो जैकेट पहन के काफ़ी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, तो फिर पहनता हूँ, क्योंकि वो उसके बगैर लगता है कि लोगों को मज़ा नहीं आता है। मतलब वो होता है ना कि सब कुछ होने के बाद, मतलब वी आर लुकिंग एट द अनदर हाफ एन आवर ऑफ रॉकिंग परफॉर्मेंस इन स्पेशल अटायर ऑफ राजीव सिंह जी। वेट करते हैं राजीव सिंह जी के आने का। मनीष जी, थैंक यू, आपके इस मैसेज को लेकर के राजीव जी आते हैं। चलिए इसी में जमा देंगे। कोई नहीं। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल
में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं
अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। जोश, प्यार, दर्द और एक आनंद, बहुत बढ़िया आनंद का अनुभव आपने दिया। ये ठीक आ रहा है ना, थोड़ा सा बेटर हुआ तो और सुनना है, थोड़ा सा फास्ट कर दूं ट्रैक को अपना। चलिए, ये बड़ा ही मज़ेदार कव्वाली है। किशोर कुमार जी बहुत कम कव्वाली गाए थे, उसमें एक ये भी है। क्या बात इस किशोर जी, रफ़ी जी, वो जो इनाकल होता है ना संगीत में, वो है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है
तुम्हारी तरफ हर नज़र उठ रही है, नज़र उठ रही है, हर नज़र उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ, और तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू। क्या बात है, हमें हमारे दिलों का हाल वैसे बहुत अच्छे से पता है। इस समय खुश हैं, मस्त हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या सुर है, क्या सरगम है, क्या ताल है। यू आर अ वन मैन आर्मी। राजीव जी, आप वन मैन आर्मी हैं। मैं सोच रही थी तो ये अब हमको लगता है कि 8 मिनट, तो मैं ये 2-3 मिनट थोड़ा कुछ लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। मैं और एक उसके चीज बाद और एक चाहूंगी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। धुन म्यूजिकल ग्रुप जो है, जो आपका एक उसमें गोल होगा, एक विजन होगी ग्रुप की, और किस तरह से लोग, अच्छा टैलेंट आपके साथ जुड़ सकता है। यंग कलाकार हैं, उभर के आ रहे हैं, इंडियन अमेरिकन किड्स आर हियर, यू नो, इन अमेरिका। और बड़े लोग भी हैं ऑफ कोर्स, जिनकी मन में पैशन रह गई गाना गाने की और जुड़ नहीं पाए पहले, लेकिन अब जुड़ना चाहते हैं इस फील्ड से। तो उनके लिए क्या स्कोप है कि वो धुन म्यूजिकल ग्रुप के साथ जुड़ पाए? और अगर कोई आगे टैलेंट हंट होने वाला है, उसके बारे में थोड़े से इनपुट दीजिएगा। और बिल्कुल आपकी फहरिस्त जो है, जिसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं अपने लोगों का, उनका नाम भी फिर हम आपसे सुनेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली काफ़ी मैं सोच रखा था। ऑब्वियसली ये पैशन है, लिविंग नहीं है। लिविंग के लिए तो हम लोग जॉब करते हैं। तो मतलब उस लिमिटेशन के बाउंड्रीज़ में काफ़ी सोच रखा था इस साल करने का। कुछ अनाउंसमेंट भी की थी, नहीं हो पाया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माहौल जल्दी सुधरे और इस पे मैं काम करूँ। ये देखिए, दो बातें हैं, और मैं सुपर ह्यूमन वाली बात नहीं करूँगा। मैं खुद ही बचपन से संगीत का दीवाना रहा हूँ, पैशन था मेरा, है, रहेगा। तो मैं खुद गाना चाहता हूँ, और जिसके पास पैशन नहीं है वो अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़रूरी है उसमें। तो हम और हमारे जो लीड सिंगर्स हैं, मैं काफ़ी प्राउड हूँ मेरे लीड सिंगर से। मैं बोलता हूँ कि वो मेरे जो लीड सिंगर्स हैं, दे आर रिकॉर्डिंग रेडी। अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात, बहुत अमेजिंग है। हाँ,
और बाकी डिटेल्स तो वीडियोस सब देख ही लेंगे। हम लोग 18 जुलाई को कॉन्सर्ट का प्लान कर रहे हैं, वर्चुअल कॉन्सर्ट का, तो उसमें मैं फिर आऊँगा, पूरी टीम के साथ आऊँगा। और मैं जब डुएट गाता हूँ तो आप मुझे देख ही रहे हैं, दिस इज़ नथिंग। तो क्योंकि मुझे एनर्जी मिलता है अपने को सिंगर्स के थ्रू, तो वो है, मतलब हम लोग खुद परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो हमारी जर्नी है इसमें जितने, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ को फील किया हूँ, मैं खुद ही डिफ्राइड फील किया हूँ अपने आप को। बहुत से ओकेजन्स में मैं कोशिश की, नहीं हो पाया, मेनी रीजन्स, नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कैसा होता है, ये फील होते हैं टैलेंटेड लोगों के लिए। इसमें एक बहुत बड़ी वर्ड है वो टैलेंट, क्योंकि एक हर लोग को लगता है कि हम अच्छा गाते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं गाते हैं। जब स्टेज पे गाते हैं तो दूसरों के लिए गाते हैं, तो दूसरों को कैसा लगे वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और उस मामले में मैं बहुत ही दूसरा राजीव हूँ, मतलब अच्छा ही हूँ, लेकिन उसमें मैं, क्योंकि माई एंड गोल इज़ टू एंटरटेन पीपल, और उसमें अगर आप क्वालिटी नहीं हो तो लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे थ्रू जितना हो सके, जितने लोगों को है वो मैं चांस दूँ। यंग टैलेंट को आई ऑलवेज एनकरेज। ये हमारे मित्र जो कुछ देर पहले कॉल किए थे, उनकी बिटिया काफ़ी अच्छा गाती है, सी इज़ इन हाई स्कूल, परफॉर्म मैनी टाइम्स, इन फैक्ट एवरी शो दैट सी परफॉर्म्स, पिछले वाले शो से एक्सपोनेंशियल इम्प्रूवमेंट होता है। और काफ़ी है, मतलब स्कूल्स के काफ़ी बच्चे हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो शॉर्ट आंसर, हमारा ये फेसबुक पेज है, वेबसाइट भी है dhunusa.com, contact@dhunusa.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक में हम लोग बहुत प्रॉम्प्ट है मैसेज को रिसीव करने में, रिसिप्रोकेट करने के लिए। और जब से वर्चुअल हुआ है तब से मुझे ना ये ग्लोबल काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं धुन से एसोसिएट होने का। काफ़ी इंकरेजमेंट फील होता है कि कहाँ से शुरुआत की थी और ये इतनी बड़ी आकृति में कन्वर्ट हो गया। तो मैं मजा आता है, कर देती हूँ कि धुन म्यूजिकल ग्रुप का एक फेसबुक पेज है जहाँ लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और धुन म्यूजिकल ग्रुप USA.com वेबसाइट है आपकी। यस, या dhunusa.com, dhunusa.com, USA.com इनकी वेबसाइट है, आप विजिट करिए, कांटेक्ट में जा करके कनेक्ट कीजिए। हाँ, उसमें भी मतलब कि you may not see too many things, but you will see the contact email. We will try to reciprocate as quickly as possible, क्योंकि मैं बताया कि भाई ये सब जो भी कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा 24 घंटे से टाइम निकाल के करता हूँ। तो बट आई वांट, मैं जब भी मुझे कोई कांटेक्ट करता है, चाहे वो हम लोग को कांटेक्ट करता है, चाहे फेसबुक के मैसेज के थ्रू, चाहे किसी और मीन्स से, मैं प्रॉम्प्टली कोशिश करता हूँ कि उनको कनेक्ट करूँ। लॉकडाउन ख़त्म हो जाने दीजिए, वर्चुअल में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टैलेंट को मौका दूँ। हाँ, और जो लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर बहुत बढ़िया उर्दू में वर्ड है इंशाल्लाह, तो एक रॉकिंग परफॉर्मेंस, एक रॉकिंग कॉन्सर्ट होगी, और उसका हम वेट करेंगे फॉर श्योर, जब लोग एक्चुअली आकर के हॉल में बैठ करके सुनेंगे आपको। एंड आई एम इक्वली ईगरली वेटिंग टू विटनेस दिस इवेंट दैट डे। तो आप नाम लेना चाह रहे थे राजीव जी, कुछ आपके मित्रों का, आपके साथियों का। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ IFMP से, जो कि मेरा दूसरा घर है। एक बार आप IFMP की टर्मिनोलॉजी, जो एब्रिविएशन है, उसको एक्सपैंड करके बताना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? तो इंडिया फाउंडेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्रिंसटन, IFMP। तो ये करीब 43 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं मन्ना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको खास करके, क्योंकि आप ही ने इसको पॉसिबल करवाया। जो एनुअल कॉन्सर्ट हुआ था, एनुअल शो हुआ था पिछले दिसंबर में, आप ने इतना अच्छा कवरेज दिया मन्ना टीवी के थ्रू, वो है। और उसके बाद ये तो थैंक यू। तो ये 43 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इस सेंट्रल जर्सी एरिया में काफ़ी इस ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच है, काफ़ी हम लोग काम करते हैं। मार्केटिंग में थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस और बढ़ सकता है। तो वो है, इसके प्रेसिडेंट जो है वो अमीश अग्रवाल जी है, हमारे ब्रदर है वो, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है हमारे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, बहुत ही कैपेबल, नेक इंसान, और जब बोलते हैं स्टेज पे तो छा जाते हैं।
और पूरी कमेटी जो है ना वो एक बहुत ही ये सिनर्जेटिक जेल्ड यूनिट है। मैं नाम लूँगा विकास ओहरी जी, दीपक चैनानी जी, नीतू पाल जी, ये मेघल ठक्कर, विराल पटेल, संजीव महाराणा, भारती श्रॉफ, अमित अग्रवाल, और मैं एक आध मिस कर जाऊंगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैं मिस करता हूँ। और तो ये हो गया IFMP जो कि मेरा दूसरा घर है। बिहार बजाना, उस तो बजाना जो है बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। अविनाश जी जो कॉल किए थे, अभी बजाना के प्रेसिडेंट है, वो सिद्धि विनायक के भी चेयरमैन है। उसके आउटगोइंग प्रेसिडेंट विनय सिंह, हमारे मेरा क्लासमेट, बहुत क्लोज फ्रेंड, वो सूर्या सिंह जी जो कि IFMP के ट्रस्टी हैं, वो मैं मिस करने वाला बहुत लोगों को, तो मैं मिस कर जाऊंगा तो भाई दिल से आप कभी मेरे से दूर नहीं हुए ना होंगे, मैं गारंटी देता हूँ इसका। खाली जुबान से दिमाग से निकल जाएंगे आप, हाँ, तो वो भी टेम्प्रोरली 2-4 सेकंड के लिए। तो फिर राणा के संजय जी तो है, राणा जो है बहुत ही मतलब हमको धुन को प्रमोट किए, हमारे आर्टिस्ट ने काफ़ी इन्जॉय किया। जब बाल्टीमोर गए थे हम लोग, राणा के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कन्वेंशन में हम लोग परफॉर्म किए थे, तो काफ़ी तारीफ़ें आई। उस कन्वेंशन में डिग्निटरीज भी आए थे। उस वक्त इंडिया के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो थे जनरल VK सिंह जी भी आए थे उस इंटरनेशनल कन्वेंशन में। तो और उसके बाद फिर FIA के जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है आलोक जी, हमारे छोटे भाई समान है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दिया मुझे। और मोनरो एसोसिएशन, हेमंत जी, ND पलूर जी, नैना पटेल जी, काफ़ी लोग हैं, मिहिर जी, तो लिस्ट गोज़ ऑन। तो जो भी थोड़ा बहुत पहुँचे हैं, हासिल की हुई अगर किए हैं तो अकेले नहीं किए हैं, इन लोग सबके साथ। और मेरा टीम तो हमेशा मतलब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ टीम के बारे में। क्या बात है राजीव जी। वेल बहुत सारे लोगों के नाम लिए राजीव जी ने, तो एक बात मैं मिस भी कहूंगी, एक बात मैं कहना चाहूंगी इस बात पे कि जो फल देने वाला पेड़ होता है ना, हरा भरा पेड़ जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं, वो बहुत झुका रहता है। एक झुका हुआ पेड़ होता है जिसमें सबसे ज्यादा फल लगते हैं। और यही होता है व्यक्तित्व, कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हो, when you are touching the top of the ladder of success, और जब आप वहां ग्रेटिट्यूड, हम्बलनेस फॉलो करते हो, आप थैंकफुल होते हो, थैंकफुलनेस लाते हो अपने जीवन में लोगों के लिए, उससे आप और बड़े बनते हो। तो राजीव जी ने अभी वही किया कि ये हरा भरा पेड़ जो है, ये जो प्रॉस्पर कर रहा है, ये उतने ही हम्बल एंड मॉडेस्ट हैं। और ये इसीलिए हैं कि जहां ग्रेटिट्यूड होता है लाइफ में, जहां प्यार होता है ऐसा लोगों को सम्मान देने का, वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनके साथ कार्मा जुड़ता जाता है। वो जो कहते हैं ना कि लीडर्स कौन होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स। लीडर वही है जो अपने साथ हर जुड़ने वाले आदमी को लीडर बना दे, गुर सिखा दे। यही गुर इनमें है, राजीव जी में। और इस चीज की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही नेक और अच्छे इंसान के साथ मेरा जान पहचान हुई, और आज वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कम मिलते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, और लेकिन अगर मेरे से कुछ भी अच्छा हो तो जिसको अच्छा के रिसीविंग एंड में रहता है उनको जितना महसूस होता है उससे ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मतलब मैं किसी के काम आया। मैं कॉमन इंसान हूँ, बहुत सेम ही सिचुएशंस है, सेम स्ट्रगल है, तो नथिंग स्पेशल, कोशिश करते रहता हूँ। बहुत अच्छे राजीव जी, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। बहुत आगे जाएगा आपका ग्रुप, आपकी पैशन है। ऑफ कोर्स आपने कहा लाइवलीहुड नहीं है, पैशन है, हॉबी है, लेकिन यही पैशन जो है ना लोगों को बहुत आगे बढ़ा देती है। यू नेवर नो कि पैशन कब प्रोफेशन बन जाए, और जब पैशन प्रोफेशन बनती है तो उसमें बुलंदियां बहुत होती हैं। थैंक यू। मैं ज्योत्सना जी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे बहुत, आई नो हम लोग का टाइम ख़त्म हो गया ना, तो ये अभी ना जाओ छोड़ के जो गाना है वही याद आ रहा है। तो
आपसे गाना के बगैर तो हम क्लोजिंग लेंगे नहीं, डोंट वरी, मेरी टीम देख लेगी, अब उनको देखना पड़ेगा, देयर इज एन एक्सक्लूसिव एक्सेप्शन फॉर यू, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी कि अब अभी न जाओ आप, तो इसे छोड़कर गाना तो आपको गाना पड़ेगा। तो मैं एक लास्ट गाना गाऊंगा, जी बिल्कुल। मतलब इस शो का जो जो कंक्लूड करूंगा शो को, तो वो अपने पिताजी को डेडिकेट करूंगा। एक लोरी, जब मैं बचपन, तो क्या था कि वहाँ पे जब छोटा था तो उस वक्त डायनामो जो हाथ से रोटेट करके एक आइसक्रीम बेचने वाला डायनामो लाउड स्पीकर चला के चलता था। तो छोटा थे, घर में रेडियो था, तो रेडियो में जब विविध भारती जाए, रेडियो शिलोंग में जो गाना आया सुन लिए, लेकिन बाई चॉइस नहीं होता था, लेकिन वो जो था वो गाना उसको हम रिक्वेस्ट करते थे। छोटा थे तो उसके पास बोलते थे कि बजा दो, मैं बजाता था, क्योंकि अब पापा को मेरे को काफ़ी वो गाना पसंद था, तो मैं उनको याद करते हुए गाना गाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दो फरमाइश आई है, तो मैं एक दो लाइन गाऊंगा और उसके बाद आपको सारी गुनगुनानी पड़ेंगी वो लाइनें, तो तभी मजा आएगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। इसका गाना आता है मुरा, इसको मैं अगली बार जब आऊँगा आपके साथ तो मैं इसको पूरा गाऊंगा। हाँ, और एक है, तो ये मेरे महबूब वाला, आजकल लिरिक मुझे काफ़ी याद रहता है लेकिन आज थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में, पता नहीं क्या वर्ड है, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, आवाज में तो वो दम है। और एक और रिक्वेस्ट आया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे भी था शायद। अरे जय भाई के लिए, संजय सिंह जी ने बोला था। और संजय भाई के लिए तो वो गाना तक सिंबॉलिक है, तो वो तो किस्मत में लिख गया है कि कभी नहीं छूटने वाला है। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार है जुदा, क्या जुदा है खुदा, क्या खुदा ऐसा अपना प्यार, जान पे भी ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे छोड़ेंगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, सुर सरगम सब है, और वो म्यूजिक तो, जो है ना, चाहिए वो खनक भी आ जाती है। मतलब आपने वो प्ले किया साथ में, खैर म्यूजिक साउंड जो पहले किया, उसके बगैर भी आप यू रॉकिंग, सिंपली रॉकिंग। तो ये मैं अब ये गा रहा हूँ, ये लास्ट वाला ये इस प्रोग्राम का, तो आखिरी जो पेश खिदमत है मेरी। अच्छा, तो आई नो क्या है, मेरे को डांट पड़ने वाली है, तो मुझे तो बिहार, खास करके मैं तो बिहार की एक अपनी लैंग्वेज होती है, तो इस पर एक जोक सुना देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये एक बंगाल और पंजाब के दो मित्र, उनको व्याकरण में कुछ दुविधा हो गई, तो आपस में लोग आर्गुमेंट करने लगे कि, तो एक ने कहा कि हवा बहती है, तो दूसरे ने कहा कि हवा बहता है। उधर से बिहारी भाई उनके तीसरे मित्र आ रहे थे,
तो उनको बुलाया गया, बोला कि हम लोग में डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ बताओ, सॉल्व करो। तो बोले कि बड़ा इजी है, ना हवा बहता है, ना हवा बहती है, हवा बहेला। तो घुमा फिरा के बात यह है कि हम लोग की अपनी एक लैंग्वेज है, तो बहुत सा जो व्याकरण है, प्रोनाउंसिएशन है, डिक्शंस है, हमारे टीम मेंबर्स खास करके शिल्पा जी और गौरी जी ने मुझे काफ़ी करेक्ट किया है। तो अभी भी वर्क नॉट डन, लेकिन लोग बताते हैं कि मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया हूँ। तो देखिए ये जो हम लोग रियाज करते हैं, और रियाज तो जो बिहारी में ना थोड़ा सा तो रियाज करते हैं ना, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए संगीत जो होता है ना, जो गाना होता है, तो वो एक फिस्ट होता है, तो उसमें 5 उंगली की तरह 5 इंग्रेडिएंट्स होता है, तब जाके एक अच्छा म्यूज़िक, एक अच्छा सॉन्ग बनता है। तो पहला जो है उसका स्पीड बोलते हैं, बीट, जो कि ताल होता है ना। तो दूसरा जो है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, वो है आपका स्केल नोट जो हो गया। तीसरा जो हो गया डिक्शन, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये बहुत सा लोग वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम खास करके पिछले कुछ सालों से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और खास करके जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे एक अपनी ही लैंग्वेज होती है। तो और ये नहीं कि सब बोलते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम था। और तो चौथी फैक्टर जो होती है वो आवाज़। आप कितना भी बढ़िया आपको ट्रैक पे गा रहे हैं, आवाज़ अच्छी नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता है, आवाज़ जी। और इसके बाद ये 4 फैक्टर मिलके शरीर बन जाता है, तो उसको गाना बन जाता है। और गाना में जो आत्मा, जो सोल, जो फीलिंग होता है, वो लाइव, उसको एक लाइव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो 5 मिलके एक म्यूज़िक बनता है। तो आप रफ़ी साहब का कोई सॉन्ग देखिए, किशोर साहब का, वो उसमें अपना आत्मा डाल देते हैं। वो तो आज के दिन में भी ना, वो जो ग्रंथ लिख गया है, कभी डाउट हो तो जाके उसको रेफ़र कीजिए। उसी तरफ से ये जो सिंगर्स हैं, नो मैटर, आज के भी काफ़ी ग्रेट सिंगर्स है, काफ़ी पहुँचे सब है, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन जो ग्रंथ है, आत्मा है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो यही सिंगर्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, और सही बोला, आत्मा वो ओल्ड इज गोल्ड हमेशा रहेगा। तो चलिए, मुझे अब नोटिफिकेशन आ गया है मेरी टीम से कि भाई टाइम हमने, आप लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 9:30 बजे से 11:15 हो रहे हैं, तो अब क्लोजिंग की जाएगी। राजीव जी, आपका जो प्रिय सॉन्ग है फादर्स डे के लिए, आपके पिताजी की डेडिकेशन, पिताजी के लिए हम सुनना। चलिए, मैं विद दिस सॉन्ग आई विल बी क्लोजिंग, ठीक है। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जाके सारी रहना तेरे मेरे नैना, जाके सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना।
तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी। साथी ये अंधेरा जैसे तेरा वैसे मेरा, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर कनेक्ट। हमारे फादर्स डे की सेलिब्रेशन जो है वो आपने शुरू कर दी है। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत इस फादर्स डे की। हिंदुस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली हैप्पी फादर्स डे टू देम एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल अवर ऑडियंस। टुमारो वुड बी फादर्स डे। इनफैक्ट फादर्स डे क्या है ना, हमने तो नाम दे दिए कुछ दिन चुन करके। फादर्स डे तो रोज ही होता है। माँ ना हो, पिताजी ना हो तो जीवन क्या। उनकी छत्र छाया में जो हम बड़े होते हैं, उनसे जो हम सीख लेते हैं। और पिता जो है ना, उनकी एक जो व्यक्तित्व है वो अलग होता है, माँ से बहुत अलग होता है। और पिता का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उस तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मीनिंग भी समझ में आता है। तो राजीव जी, बहुत अच्छा कनेक्ट आपने जोड़ा है आज एंड इट्स बीन एन अमेजिंग इवेंट। I have got hundreds of messages on my various platform जहां जहां ये वॉच पार्टी चल रही थी। इस समय टीवी पे तो चली रही थी, सोशल मीडिया पे भी बैंग ऑन, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अलग अलग ग्रुप्स में आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स एंड एप्रिसिएशन लोगों ने दिया है एंड बोला है कि हम दोबारा सुनना चाहेंगे राजीव जी को। तो ये नाता हमने आपसे जोड़ा है। मैंने कहा हमने आपसे नाता जोड़ा है अभी तो, और अभी बहुत सारे कार्य जो हैं उनमें हम जुड़ते जाएंगे अभी और आगे बढ़ते जाएंगे। जरूर। मैं मतलब ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ दोबारा आऊँ इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों को अच्छा लगा। मैंने पूरी कोशिश की, और एक कलाकार को अगर एप्रिसिएशन मिलता है ना तो वो प्राइसलेस होता है, उसको बिलियन ट्रिलियन डॉलर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस इसी से अपने आप को धनी महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो धन जो आज मुझे मिला, मैं बड़ा चैन की नींद से सोऊंगा आज। और मैं अपने माता को प्रणाम करता हूँ, भाई बहन, दीदी भैया, मेरे जितने भी रिश्तेदार वगैरह है, फ्रेंड्स वगैरह, सबको थैंक यू बोलता हूँ। और ज्योत्सना जी, किसी ने कहा था इस कॉल में कि आप कमाल के होस्ट हैं। आप बहुत ही कमाल के होस्ट हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस फॉर देयर लव एंड अप्रिसिएशन। मैं भी छोटा सा काम कर रही हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है और क्या कहते हैं ना कि छोटी जिंदगी में कुछ कुछ लम्हे मुस्कुराहट के बांटते चलें तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। हम में जिए तो क्या जिए, जब जीते हैं लोगों के साथ में तो आता है आनंद जिंदगी का। तो बस मैं भी सीख रही हूँ और ये कारवा बढ़ाती जाऊंगी आप लोगों के साथ। ये जो कम्युनिटी स्पेशल विद ज्योत्सना करके प्रोग्राम का नाम दिया गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आई जस्ट वांट टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड ब्रिंग सम मीनिंगफुल थिंग्स टू योर लाइफ। कभी एंटरटेनमेंट होगा तो कभी मैसेज होगा, तो कभी एजुकेशन होगी तो कभी मोटिवेशन होगा। और आज राजीव जी ने हमारे इस शो में आकर के बहुत ज्यादा शोभा बढ़ाई हमारे इस मना टीवी के प्लेटफॉर्म की। बहुत अमेजिंग व्यूअरशिप हमारी इस समय चल रही थी। राजीव जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं and we would love to see you again and we wish you all the very best for all your endeavors and I'm very sure कि जो लोग आपसे जुड़ेंगे
जो लोग सीखना चाहेंगे आपके ग्रुप को ज्वाइन करके, धुन म्यूजिकल ग्रुप को, बहुत आगे जाने वाले हैं। और जितनी भी नॉन प्रॉफिट्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, यू आर एन एसेट टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। आप एक वो चमकता सितारा है, वो एक दीपक है, वो प्रकाश प्रज्वलित करते हैं आप अपने जहां भी जाते हैं, वो रोशनी लेके जाते हैं, वो कस्तूरी मृग हैं जहां वो आप अपने कला की, हुनर की सुगंध लेके जाते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत सारी और बधाई देते हैं, विशेष देते हैं, प्यार देते हैं मना टीवी की तरफ से कि आप और आगे बढ़े। थैंक यू फॉर टुडेज इवनिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्पेशल इनपुट्स आपने माइक से लेकर के लाइट एडजस्टमेंट से लेकर के हर एक छोटी छोटी चीजों के पारखी बन के आपने इस प्रोग्राम को जो है सफल बनाया है। और ये हमारा पहला कॉन्सर्ट था इस तरीके का जो बहुत बहुत देर तक चला। एक बहुत एनर्जी चाहिए होती है किसी को कि वो 2 घंटे लगातार 2.5 घंटे गा सके, बात कर सके, परफॉर्म कर सके विदाउट टेकिंग वाटर ब्रेक इवन। तो हम आपके उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए कि आपने बहुत अमेजिंग साथ दिया आज हमारा। थैंक यू सो मच। Thank you, Jyotsna ji. And my viewers, today was an amazing evening and I'm pretty sure it is almost midnight now. But आपकी नींद थोड़ी खुल गई होगी क्योंकि आपकी नींदों में अरमान होंगे, प्यार होगा, एक अंदाज होगा, एक रोमांटिसिज्म होगा, एक ज़ेस्ट फॉर लाइफ होगा, ज़ील होगी, तमन्नाएं होंगी, क्योंकि आज की शाम हमने कुछ तब्दील करी थी, कुछ रंगों में बदली थी, कुछ सुर और ताल के साथ, एक होनहार कलाकार के साथ हमने जोड़ा था। आज हमारी उम्मीद, हम करते हैं कि हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरे होंगे। और इसके साथ आज का ये शो हम खत्म करते हैं, लेकिन हम दोबारा आएंगे, कनेक्ट करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ जैसा करते हैं। मेरा वादा है आपसे, अच्छा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे साथ में। थैंक यू आप सभी को। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। Thank you so much, Rajiv ji. Thank you so much to everyone. Thank you, Jyotsna ji. Thank you, everybody. Thank you.